So, welcome back to our channel, Ma Kali Divine Readings. And thank you so much if you are seeing this reading and supporting us. This channel is new, and by the divine blessings and grace of Ma Kali, we have started this channel to bring clarity and guidance to all the people who have faith in Ma Kali and her divine grace. So today we are going to do a reading, which is a pick a pile reading. It will be essentially a love reading, a relationship reading. So if you are new on this channel, then do follow us, subscribe us, and comment I claim it in the comment section so that the energies remain with you. Okay, so let's start the reading by uh, taking name of Ma Kali, having a meditation prayer on for her by chanting 11 times her name. Jai Ma Kali, 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 Jai Baba Bhairavnath, Jai Mata. So, Ma Kali, please give us two cards for my collective uh, so that we can give them clarification about their love life. So we will be picking up this card. Uh, this will be pile 1 and pile 2 will be this one. Okay. So please meditate on this card for 3 seconds and choose whichever card you are attracted to intuitively. Okay, and then we will begin with the pile 1. This is pile 1 and this is pile 2. So let's begin with the pile 1 and see what's in the energy. Okay, it's 8 of swords in reverse. Freedom to choose, self created boundaries, new perspective, and external limitations. So the collective here, whether the collective or their partner, they are choosing the freedom over any kind of limitations or any kind of self created doubts they had in their mind. उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी, नेगेटिव थॉट्स रिलेशनशिप को लेकर या जो भी वो सेल्फ डाउट में थे अब तक, वो जो समझ नहीं पा रहे थे, अब दरकिनार कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं और वो अपनी जो भी उन्होंने लिमिटेशंस बाउंड्रीज बना रखी थी उनसे बाहर निकलने का अब वो फैसला ले रहे हैं. तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 कार्ड से बाय पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज. माँ काली, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स. ओके, एक कार्ड निकल कर आया है खुद से. ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 एंड 9. ओके, कोई यहाँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में था काफ़ी लंबे समय से, या ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं. टेक एज इट रेजोनेट्स. ओके, सो you were very much worried about something that was not going right in your relationship. Let's check the present energy in this situation. Please give us a card, Ma Kali. Okay, Empress in reverse. There was some kind of codependency, some kind of inaction. ओके, मोटिवेशन डाउन था, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आप या आपके पार्टनर उन चीज़ों से जूझ रहे हैं प्रेजेंट में, या नियर पास्ट में भी ये एनर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, रिसेंट पास्ट में. आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या है. प्लीज गिव अस अ कार्ड. 8 of wands. Some moment or some kind of decision will be taken in your love life.
it could be some kind of communication also that is coming to you, that will be bringing a new rebirth in your love relationship. आपके रिलेशनशिप में कोई न्यूनेस आएगी, कोई न्यू बिगिनिंग होगी. So let's clarify these three cards also. Give me two cards for Nine of Swords. Jai Ma Kali, Jai Ma Kali, Jai Ma Kali, Jai Ma Kali. जय बाबा भैरवनाथ. प्लीज 2 कार्ड दीजिए मुझे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स. There was some kind of financial, I would say, there was some kind of financial loss or financial stagnation, either with you or your partner. आप दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें स्टैगनेंट हो गई रिलेशनशिप में. ये मैं देख सकती हूँ इस रीडिंग में. और ये काफ़ी हद तक मतलब इसकी वजह से चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो गई आप लोगों के बीच में. और हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस वजह से इस एनर्जी में आ गए पास्ट में. ये पास्ट की एनर्जीज हैं. आगे चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं. प्लीज क्लैरिफाई एम्प्रेस इन रिवर्स. 2 कार्ड्स फॉर दिस. जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली. जय बाबा भैरवनाथ, जय माँ तारा. प्लीज 2 कार्ड दीजिए मुझे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफेंट. ओके. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है. ओके. जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, आप एक एम्प्रेस थे, ठीक है, आपको एम्प्रेस ना सोचकर उन्होंने कुछ और ही समझ लिया. ठीक है, आपकी वर्थ नहीं समझी. बिकॉज यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी फीमेल फिगर का इंटरफेरेंस है और उसके साथ हायरोफेंट का कार्ड आया है. मे बी शी इज़ देयर वाइफ और समथिंग. ठीक है, ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है उनका. ठीक है, जिसकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपकी वर्थ को उन्होंने नहीं समझा. एंड बिकॉज ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी उनके साथ, फाइनेंशियल लॉस एंड स्टैग्नेशन, ये तो इसकी वजह से तो वो परेशान थे ही. बाकी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल थी जो कि जिसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था, कंट्रोल था उनके ऊपर. एंड शी इज़ काइंड ऑफ अ वेरी कनिंग एंड वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन ऑल्सो. सो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया आपके पार्टनर को और इसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी. एंड ही हैज़ लेट डाउन यू इन सम वे और द अदर. आगे चल के देखते हैं फ्यूचर में क्या कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. क्या न्यू बिगिनिंग होने वाली है. प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स माँ काली, आप प्लीज़ 2 कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए. 8 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए. ओके. चैरियट इन रिवर्स. 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके. ये बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन आया है इस कार्ड में. आई थिंक आई शुड टेक दिस एज दिस. ओके. इट्स नॉट इन रिवर्स. मुझे लग रहा है शायद कुछ कार्ड रिवर्स हो गए हैं इसमें डेक में. मैं इसको ठीक कर लूँगी. दिस कॉम्बिनेशन इज़ लाइक दिस, चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स. तो यहाँ 8-8 की एनर्जी आई है. हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है. 8-8 की एनर्जी है और उसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है. तो सैटर्न प्लैनेट की भी एनर्जी है क्योंकि 8 नंबर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को वो जहाँ भी जिस स्थिति में फंसे हुए थे इनके साथ, ये जो भी लेडी हैं या कोई भी हैं थर्ड पार्टी, उनको उनसे वॉक अवे करेंगे. ठीक है. और ये सब चीज़ें 8 महीने या 8 हफ्तों के भीतर भीतर होंगी. 7वें हफ्ते में या फिर 7th मंथ में आपके पास
आपके पार्टनर आ सकते हैं कोई रिकन्सिलिएशन करने के लिए, या कोई डिसीजन ले सकते हैं उनको किसी this relationship will have the success that it needs. Some kind of communication will come up to you. Okay, so कलेक्टिव या तो आप या आपके पार्टनर जो भी हैं उन्होंने वॉक अवे करने का सोचा है इस रिलेशनशिप से। एक ओवरऑल आउटकम के लिए एक और ले लेते हैं कार्ड, क्या रहेगा ओवरऑल आउटकम। प्लीज माँ काली एक कार्ड दीजिए, ओवरऑल आउटकम। 5 of Swords। ओके, गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए मुझे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, वही आपके जो भी पार्टनर हैं जो कि जिन्होंने आपको लेट डाउन किया इस रिलेशनशिप में, आपकी वैल्यू नहीं समझी, वो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और अभी उनका रियलाइजेशन और बढ़ेगा आपको लेकर कि आप कितने नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन थे उनके लिए, आप कितने काइंड हार्टेड थे, इतने कंपैशनेट पर्सन थे, और उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एंड ही will be, you know, I think they really think about you a lot, they think about you a lot, and slowly but surely उनको पूरा मतलब एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा इस बात का कि दैट यू वर अ वेरी वंडरफुल पर्सन। एंड आई थिंक इतना वंडरफुल पर्सन उनको कभी ज़िंदगी में आगे मिलने नहीं वाला है, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, तो एक ओरेकल से भी कार्ड लेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए। ओके, सो हम गाइडेंस लेंगे योगिनी ओरेकल्स से, ताकि आप अपने इनर वर्क पर और ज़्यादा ध्यान दे सकें और आपका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो सके। तो मैं कार्ड्स को शफल करके आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। ओके, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लेम कर लेना, ठीक है, चैनल को फॉलो कर लो ताकि जो भी ये वीकली रीडिंग्स आ रही हैं आप उन्हें देख सको। चैनल पर पूरे हफ्ते में 4 रीडिंग्स आएंगी, मैंने शेड्यूल भी पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फॉर लव, करियर, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड फॉर नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पीपल आई विल बी पोस्टिंग दीज वीडियोज़। सो आपके लिए कार्ड आया है ओजमनी पद, ओके, जो कि 26th योगिनी है। नाउ हम मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज ओजमनी माता हमको देना चाहती हैं। ओके, ओजमनी means the velocity. She represents the creative energy expressed throughout the range of vibratory velocity, that is divine thought. Like other animal headed yoginis, she is beyond argument and knows the right time for the action. Sri Ojmani Pad says, I dwell in stillness beyond the most refined level of perception. I vibrate with the pace of creative thought that runs primordial matter. Sri Ojmani Pad represents the immediate response to creative thoughts. After refining the perception and transcending the most refined vibration of the senses, the mind expresses itself throughout its total range of velocity and masters primordial matter. आया गया इसमें जो भी है मैं हिंदी व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ एक बार। ओजमनी माता जो हैं इनका रैबिट हेडेड है, and she knows how to just still be still in the present moment. Okay, but she is not giving up on her velocity. She knows that when is the right time to act upon her uh, you know that energy, she does not argue. तो आपको फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है। ये जो भी कलेक्टिव हैं मैं उनको ये बोलूँगी कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक होके, बिकॉज दिस इज रैबिट हेडेड, सो आपको पता है कि रैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट कनिंग एंड क्लेवर। तो आपको वो जो आपके अंदर जो भी एक साइड है, आपकी शैडो साइड जो कि क्लेवर है, कनिंग है, क्योंकि सबके अंदर होती है, तो उसको आपको तभी स्ट्रैटेजिकली यूज करना है। और आपको
ये दिखा आपको ये नहीं दिखाना कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अंदर मन में आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आगे आने वाले टाइम में। तो यू डोंट हैव टू गिव अप योर वेलोसिटी, जस्ट बी परसिस्टेंट विद योर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और जब सही वक्त आएगा आपका, आप उस पर एक्शन लेंगे। ओके, तो ये गाइडेंस आज पाइल नंबर 1 के लिए थी। अब हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पर। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं पाइल 2 से और देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। होल्डिंग ऑन टू टाइट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। कलेक्टिव, आप जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, या तो आप या आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। बहुत ही कंट्रोल और कंट्रोल फ्रीक जिसे कहते हैं, हर चीज़ को बहुत कंट्रोल में रखना, अपनी सिक्योरिटी, अपनी रैंक, अपने मनी को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, वो उस एनर्जी में हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है, फोकस से ज़्यादा मैं बोलूँ ऑब्सेशन या पजेसिवनेस, वो यहाँ पर दिख रही है। आगे क्लैरिफाई कर लेते हैं। माँ काली, प्लीज़ आप 3 कार्ड्स दीजिए मुझे फॉर पाइल 2 पीपल। ओके, खुद ही 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं, बट मैं नहीं लूँगी, दोबारा शफल करूँगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो पास्ट की एनर्जी में ये जो भी इंसान है, या आप थे या फिर आपके पार्टनर, आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में थे। हो सकता है आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर किया है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ बाउंड्रीज हो सकती हैं उस चीज़ में, और जिसकी वजह से अ, आप शायद इस एनर्जी में आ गए हैं। अब वो हम क्लैरिफाई करेंगे कि आप इस एनर्जी में कैसे आए। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एक अच्छी बात ये है कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी लैक आपको फील हुआ, हो सकता है कि आपके होम में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, किसी ने भी आपके पैसों का गलत फ़ायदा उठाया है, और आपके पास पैसे नहीं रहे या आपके पार्टनर के पास नहीं रहे, जो भी है, रोल्स रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ हुई है, मतलब आपके साथ जो भी बिट्रेयल हुआ है मनी के मामले में, आप उसको समझ गए हैं और अब आप उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं। यू आर इन अ रिकवरी फेज, यू विल बी असिस्टेड बाय समवन इन दिस मैटर। ओके, सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। फ्यूचर में आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। दैट मीन्स आप ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके स्पाउस की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, या जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में से जो भी थे, उनसे आप वॉक अवे करेंगे। यू हैव टेकन योर डिसीजन टू वॉक अवे विद कॉन्फिडेंस। यू आर नो मोर एंगेजिंग इन दिस बुलशिट। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ अब नहीं रहना जो आपके मनी को रेस्पेक्ट नहीं करते, आपकी मेहनत को रेस्पेक्ट नहीं करते, विच इज़ अ गुड डिसीजन, आई विल से। आपको कभी भी, चाहे मनी हो या आपके इमोशंस हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको ऐसे लोगों को टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए जो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। टाइम, मनी एंड योर इमोशंस, दीज आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ, एंड इफ समवन इज नॉट रेस्पेक्टिंग इट, जस्ट लेट देम गो। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो आपका सारा फोकस उनके पास रहेगा, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। इससे बढ़िया है आप उस टाइम और उस एनर्जी को आप किसी अच्छी जगह लगाएं, अपनी लाइफ के किसी गोल पे लगाएं। हो सकता है वहां से आपको कुछ रिटर्न मिले, ठीक है ना, जो आपको उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड दीजिए मुझे। माँ काली, माँ भैरव, जय काल भैरव। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। 3 कार्ड्स दीजिए माँ काली मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। डेफिनेटली
ये जो भी कलेक्टिव देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनको उनके स्पाउस से कुछ ना कुछ बिट्रेयल मिला है, और जो उनका ये ड्रीम था ना अपने स्पाउस के साथ, दैट दे विल बी क्रिएटिंग अ हैप्पी लाइफ विद देम, आई थिंक दैट ड्रीम हैज़ ब्रोकन। उनकी आंखों पे से वो पट्टी उतर चुकी है। आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, आपको ये डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ रहा है, बिकॉज हर कोई इंसान अगर अपना मनी किसी के साथ शेयर करता है, दैट इज़ समथिंग वेरी डीप। लोग सोचते हैं अरे क्या है पैसे, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई इंसान आप पे पैसा खर्च कर रहा है, दैट मीन्स दैट यू मीन समथिंग टू देम, क्योंकि मनी आजकल कमाना इस दुनिया में आसान नहीं है। सो योर स्पाउस शैल रेस्पेक्ट योर मनी, दे शैल नॉट यू नो be a control freak on it or do some manipulation on you to gain money. ओके, तो यही, हाँ मुझे यही एनर्जी मिल रही है। उप्स, थोड़े कार्ड स्लिप हो गए। ये एनर्जी मुझे यही मिल रही है यहाँ पर कि कलेक्टिव के साथ कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, बिट्रेयल हुआ है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स शेयर करे अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर ने उनको धोखा दिया। एक और कार्ड दीजिए मुझे 10 ऑफ कप्स के लिए। 9 ऑफ कप्स, हाँ वही, योर पार्टनर, वाइस वर्सा, और योर फैमिली, दे वर सेल्फिश। उन्होंने केवल अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए आपके पैसे का खर्चा किया है। आपको इस चीज़ का जब पता चला है, यू हैव रिलीज्ड देम, यू हैव टोल्ड दैट टाटा बाय बाय, अब आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू, विच इज़ अ गुड थिंग। इसको हम फाइनेंशियल एब्यूज़ कहते हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे पैसा ही तो था, कि चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। पर मुझे नहीं लगता कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, मतलब अगर कोई इंसान आपको वाकई में प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो वो आपकी हर चीज़ को प्यार और रेस्पेक्ट देगा। आई बिलीव सो। अगर वो आपके पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको केवल यूज कर रहा है पैसे के लिए, तो वो आपका ट्रू पार्टनर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? बेहतर ये है कि आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करें और अपने लिए कोई ट्रू पार्टनर ढूंढें, या फिर यूनिवर्स आपको खुद दिलवाएंगे वो। आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी इनर हीलिंग कीजिए, जिसके लिए हम गाइडेंस भी दे रहे हैं ऑरेकल कार्ड से। तो मैं ऑरेकल कार्ड के बारे में कुछ और भी बता दूं। ये ऑरेकल कार्ड से हम एक रीडिंग भी करते हैं, जो कि हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है आपके सोल की। ठीक है, तो एक रीडिंग जो है उसको हम रोम्बस रीडिंग कहते हैं, जो कि उसमें हम 4 कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ करेंगे अपने ऑरेकल्स से, और आपको कुछ साधना प्रैक्टिसेस भी बताएंगे। फॉर 8 डेज आपको वो करनी होगी। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अपनी लाइफ के लिए रीडिंग चाहिए, तो वो उसमें आपको 12 कार्ड्स निकाले जाएंगे आपके लिए, और उसके हिसाब से आपको साधना प्रैक्टिस करनी होगी 12 दिन की, और फिर उसके बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह की जो भी रीडिंग्स हम दे रहे हैं वो आपको बता देंगे, हम उसके बारे में क्या क्या चार्जेस हैं और किस तरह से अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ही आई वुड से बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में हम ये रीडिंग अभी दे रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल काफ़ी नया है, और पर इस चीज़ की प्रैक्टिस मैं काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ, और क्योंकि मैं माता रानी की भक्त हूँ, तो काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को जानती हूँ, और मैं इस चीज़ का एश्योरेंस देती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में मिलेगा, जो भी आपकी विश होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं पूरा प्रैक्टिस आपको बताऊँगी अगर आप मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच करते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को भी कर लेते हैं क्लैरिफाई। 2 कार्ड्स दीजिए मुझे यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। 2 कार्ड्स प्लीज। जस्टिस इन रिवर्स, टेम्परेंस, ये रिवर्स में आ रहे हैं सारे, रिवर्स नहीं है ये, ऐसे है। आई थिंक फिर से कार्ड्स थोड़े उलट पुलट हो गए, शफलिंग में हो जाता है।
जस्टिस एंड टेम्परेंस, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस सिचुएशन को। आप हो सकता है पहले आप नहीं मान रहे थे, आप इमोशनल हो गए थे कि नहीं शायद मेरा पार्टनर गलत नहीं है, या जो भी है वो इंसान आपकी फैमिली से जो भी है, फीमेल, स्पेशली फीमेल ही लग रही है मुझे, तो लग रहा है कि ये कोई फीमेल ही है, आपकी स्पाउस ही लगती है, स्पाउस हो सकता है, फीमेल आ रही है जो कि जिन्होंने, या आप फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस सिचुएशन को। जेंडर न्यूट्रल होती हैं रीडिंग्स, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि फीमेल ही है या ये है। आपको खुद आपकी इंट्यूशन बता देगी कि वो इंसान कौन है। जब आप रीडिंग को सुन रहे होंगे तो आपकी इंट्यूशन में पहला जो नाम आएगा ये इंसान वही है, ठीक है। तो आपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आपने अपने आप को जस्टिस दिलवाया है बाय वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक डायनेमिक जहां आपका फाइनेंशियल अब्यूज हो रहा है, ठीक है। बढ़िया किया आपने, वॉक अवे करना चाहिए ऐसे लोगों से जो केवल आपको बैंक की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आपकी नीड्स के बारे में तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ मुझे एक भी कार्ड कप का नहीं दिखा। आपकी इमोशनल नीड्स तो कोई देख ही नहीं रहा, यहाँ तो बस अपनी सेल्फिश नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी क्या कहते हैं पेंटिकल्स पर ध्यान, अपने फाइनेंशियल नीड्स और अपनी इमोशनल नीड्स को देख रहे हैं। बस आपके पार्टनर हैं या जो भी इंसान है, वो बस अपनी ही नीड्स के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तो नीड्स कहीं दिख ही नहीं रही मुझे प्रेजेंट सिचुएशन तक। आपके बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा है उन्होंने। आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, और अगर आप नहीं निकले तो ये इंसान आपको खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। आपके पास ना पैसे बचेंगे ना आपके पास प्यार बचेगा। बाहर निकलिए ऐसे रिलेशनशिप से। दो कार्ड और आ गए हैं, अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। आप खुद हार्ड वर्क करेंगे अकेले इंडिपेंडेंट होकर, और खुद अपनी सक्सेस का मजा अकेले चखेंगे। देखिए मैं एक बात बोलूं, आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर आप अकेले कोई काम करते हैं ना तो उसमें आप ज्यादा सक्सेस पाते हैं, बजाय आप किसी और के साथ मिलकर काम करें। क्योंकि आजकल लोगों में लॉयल्टी नहीं बची है, लॉयल्टी बहुत कम है, और आपको धोखे पे धोखे देते हैं लोग। तो बेहतर ये है कि आप खुद अपने आप को इतना सशक्तिकरण अपना करें कि आप यू जस्ट बिकम सो मच स्ट्रांग दैट यू डोंट इवन नीड एनीवन। हाँ, अकेले काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें सारे चैलेंजेस आपको खुद ढोने पड़ेंगे, बट आप डिवाइन पर फेथ रखिए। एक डिवाइन ही होते हैं जो आपको रास्ता दिखाएंगे। हीलिंग सेशंस लीजिए, गाइडेंस ले सकते हैं टैरो से, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो मैंने रीडिंग बताई है आपको, वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की रीडिंग इसीलिए है। वो आपको बताएगी एक्चुअली कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और किस चीज़ को आपको डेवलप करना है या किस चीज़ को आपको छोड़ना है, ठीक है। और ये जो ओरेकल्स मैंने लिए हैं ये योगिनी ओरेकल डेक है, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस डेक होता है। अगर ये डेक मेरे पास है तो ये समझ लीजिए आप कि डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इसमें पूरी 64 योगिनी जो भी होती हैं माता की, उनके कार्ड्स हैं ये। और अलग अलग योगिनी आपको बताएंगी कि आपकी लाइफ में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करना है आपको, क्या चीज़ है जिनको आपको लेट गो करना है, और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको डेवलप करनी है। तो आप आ गए हैं अभी इस एनर्जी में, आएंगे आप अपना इनर वर्क करते रहिए। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है इनर वर्क में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो ये इनर जर्नी है ये फुलफिल हो, सक्सेसफुल हो, और आप ऐसी टॉक्सिक डायनेमिक से बाहर निकलें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग ऐसी टॉक्सिसिटी में फंसे रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये प्यार है, ये है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके जो भी ये धोखा देने वाला इंसान है उसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी करने की किया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप उनको ये पैसे दे बैठे। व्यूअर्स बी अवेयर, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्लीज एनर्जीज से बाहर निकलिए। ये टॉक्सिक डायनेमिक्स में आप फंसकर आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपको इस सिचुएशन में आना है, इस एनर्जी में,
देखिए इस एनर्जी में और इस एनर्जी में क्या अंतर है। ये पास्ट में आप ऐसे थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इसमें नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, पैसा है आपके पास, इसमें भी इसमें भी, और यहाँ आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान कम है पास्ट में। फ्यूचर में आपको ये बनना है, आपको अपने आप पे ध्यान ज्यादा देना है, अपनी इंडिपेंडेंस पर, ठीक है, अपने सोल सेटिस्फेक्शन पर, अपनी सेल्फ लव सेल्फ केयर पे, ठीक है। अगर आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, वरना आप यहाँ फंसे रहेंगे, और यहाँ फंसे रहेंगे तो ऑब्वियसली आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लैक वाली एनर्जी जो है ये दिख रही है आपको, ये आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने आपको इस एनर्जी में पहुंचाया है, ठीक है। एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हैं, करेंगे अभी 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने में आप वॉक अवे करेंगे। आप इन बर्डन्स को उठाकर इन्हीं के मुंह पे दे के मारेंगे कि लो पकड़ो भाई, तुम्हारे बर्डन मैं नहीं उठा सकता। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस, अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने आपके साथ ये बिट्रेयल किया है, तो आप बहुत सही कर रहे हैं। कीप गोइंग, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और इस एनर्जी में आप ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी है, पूरा एक पिक्चर आपके सामने आके खड़ा हो गया है कि आपको क्या करना है, क्या है आपके लिए, ठीक है ना। पूरा सामने आके खड़ा हो गया है ये, आपके सामने आपकी लाइफ का पिक्चर मैं देख सकती हूँ। बहुत खूबसूरत रीडिंग दी है माँ काली ने, जिसके पास भी पहुँचेगी उस पर ज़रूर माँ काली की कृपा है, ठीक है। एक और कार्ड दीजिए मुझे, माँ काली, जय भैरवनाथ, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। एक और कार्ड दीजिए माता, ओवरऑल आउटकम के लिए इस सिचुएशन में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी स्ट्रगल है, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जो हार्ड अर्न मनी होता है इंसान का, जो वो उसने मेहनत से अपने पसीने की कमाई होती है उसकी, और जब लोग उसको इस तरह से उड़ाते हैं फालतू की चीज़ों में, अपनी सेल्फिश नीड्स में, ठीक है ना, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके मनी की रेस्पेक्ट नहीं की गई। पर कोई बात नहीं, ये भी आपका एक लेसन है, लेसन सीखना भी ज़रूरी होता है। आप अंधविश्वास करना बंद करेंगे लोगों पे, खासकर अपने स्पाउस या पार्टनर पर, आगे फ्यूचर में जो भी होंगे। सो व्यूअर्स, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी वीडियो बनाते हुए, मैंने देखा नहीं, वीडियो वॉज शट डाउन। सो ओरेकल कार्ड जो मैंने आपके लिए निकाला है वो ये है कि 13वां पद, ठीक है, जो कि 56th योगिनी है। शी इज किलिंग द डेमन इनसाइड यू विच इज फियर, फियर ऑफ लैक, ठीक है। जिस डीमन की वजह से आपने बाउंड्री सेट नहीं करी अपने पार्टनर के साथ, एंड दे लिटरली फाइनेंशियली अब्यूज्ड यू इन द रिलेशनशिप, आप उस इंसान को अपने अंदर से मारेंगे। और माँ तेरवा आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे रही है कि आप वो स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर, दैट यू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड यू नेवर डू दिस अगेन इन फ्यूचर। सो माँ आपको ज़रूर गाइडेंस देंगी आगे के लिए। बाकी आपका जो आउटकम आया था वो ये था कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। आगे जाकर आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर आप हील करेंगे अपने फाइनेंशियल ट्रॉमा को जो आपने इस सिचुएशन में झेला है, और आप आगे के लिए सही लेसन लर्न करेंगे, ताकि आगे आपका कोई भी फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। आज की रीडिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल मोड पर चली गई। यूजुअली हम लोग यही सोच कर चलते हैं कि लव, इमोशंस, पैशन, डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें लव रीडिंग में होती हैं, बट आज की रीडिंग मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसने एक्चुअली एक्सपोज किया है आजकल रिलेशनशिप्स में मोस्टली क्या होता है लोगों के साथ, स्पेशली द मेल काउंटर पार्ट्स, उनके साथ, कुछ फीमेल्स के साथ भी होता है। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें मत होने दीजिए अपने साथ। प्लीज़ लर्न टू सेट बाउंड्रीज रिगार्डिंग फाइनेंसेस। प्लीज़ आस्क योर पार्टनर दैट व्हाट आर दे डूइंग विद योर मनी। आपको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, ठीक है।
जो कि शायद आपने नहीं किया, इसीलिए आपके साथ ये सब चीज़ें, बिट्रेयल, चीटिंग हुआ है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लेम कर लेना एनर्जीज़ को, लाइक कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना चैनल को। और अगर आपको हीलिंग सेशंस लेने हैं मुझसे, जो मैं ओरेकल रीडिंग आपको समझा रही थी, ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर कोई भी ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई ऐसा वुंड रह गया है ना, उसकी वजह से आपके साथ ये चीटिंग, बिट्रेयल होता है। तो उसको हील करने के लिए मैं आपको कुछ साधना प्रैक्टिसेस भी बताऊंगी, ठीक है, जो कि आपको करनी होंगी कुछ दिन, और उसके बाद आप देखिएगा आपके अंदर कितना चेंज आता है। ठीक है, आई एम गिविंग यू अश्योरेंस ऑफ इट। सो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, लिंक आपको मिल जाएगी, मेरे दोनों पेजेस पर है, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक कीजिएगा माँ काली का कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, ठीक है। तो मे माँ काली ब्लेस यू with all her divine grace and blessings. Thank you so much, viewers. Jai Ma Kali.